السلام علیکم دوستو، میں جائز سما آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سرفراز آسمان میں 3 کہانیاں اپلوڈ کی تھیں۔ تینوں کہانیاں جدید اردو ادب کی شاہکار کہانیاں ہیں۔ ان تینوں کہانیوں کو یکجا کر کے یہاں پر پھر سے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ پہلی کہانی محترم جمن احمدانی صاحب کی ہے، جس کا عنوان ہے سپاہی کی گٹھڑی میں بندھا در پہ۔ دوسری کہانی محترم آصف جمالی صاحب کی ہے، جس کا عنوان ہے مورتی۔ اور تیسری کہانی محترم مسلم انصاری صاحب کی ہے، جس کا عنوان ہے گاؤں سے شیر دیکھنے آئی لڑکی۔ یہ تینوں کہانیاں محترمہ روبینہ عفان صاحبہ اپنی آواز میں سنائیں گی۔ انہیں سے اردو کہانیاں پڑھنے اور سننے والے اس کو ضرور پسند کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ سندھ کے ایک بہترین کہانی کار محترم جمن احمدانی کی ایک کہانی آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا عنوان ہے سپاہی کی گٹھڑی میں باندھا درد۔ رات گئے، بارش تھم چکی تھی۔ صبح کو سورج بھی نکل آیا تو امید جاگی، شام تک ٹرین سروس کو بحال کر دیا جائے گا۔ سورج ڈھلتے ہی وہ اپنی گٹھڑی سنبھالے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ لوگ اپنا سامان اٹھائے متوقع ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر پتہ چلا ٹرین 1 گھنٹے میں اسٹیشن پہنچنے والی ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب اپنے آبائی گاؤں جا کر سکون کی نیند سوئے گا۔ اس نے اپنی گٹھڑی پر نگاہ ڈالی، جس میں ان کی جوانی کا وقت لپٹا پڑا تھا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں دعاؤں کے ساتھ انجانے خواب بھی رکھے تھے۔ ماں کی گود میں سو کر گزاری وہ آخری رات بھی باندھی تھی، جس رات میں اس نے ایک حسین خواب دیکھا تھا اور اپنی غربت، احساس محرومیوں کو محسوس کیا۔ سماج کے بے حس رویوں میں چودھری وڈیرے کی غلامی میں جکڑے اپنے والدین کی زندگی کا المیہ بھی تھا، جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں ان کی بھوک مٹانے کی ضمانت تھے۔ اونچے گھرانے کے ہم کلاسی اس پر جملے کستے اور وہ چپ چاپ برداشت کر لیتا تھا۔ اس کی گٹھڑی میں زندگی کے وہ تلخ خط بھی تھے جو اس نے اپنے خدا کو لکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ انتظار کے لمحوں کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی گٹھڑی کھول کر یادوں کے سائے میں بیٹھتا، ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ چکی تھی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی اپنی بوگی میں سوار ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں باہر سے کچھ نظر نہیں آیا۔ ٹرین چل پڑی تو ہلکی سی بارش بھی شروع ہو گئی۔ اس نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سونا چاہا، نیند نہیں آئی۔ وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو گیا۔ 20 سال پہلے وہ فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا، اب ریٹائر ہو کر اپنے آبائی گاؤں کو لوٹ رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ماؤں کی آنکھوں میں اپنے جوان بیٹوں کے جیتے جی بچھڑنے کا غم بھلا آج تک کوئی پڑھ بھی سکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں انجانے میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی گٹھڑی کھولی، زندگی کے باندھے خواب نکالے، خط کھولے، تصویریں دیکھی، جوانی کے وقت پر چڑھی دھول جھانی۔ انتظار کے موسم میں ایک لڑکی تھی، ایک خواب، زندگی بدلنے کا تھا مگر نہیں بدلی۔ اونچ نیچ کے اس سماج میں ایک غریب سپاہی کی زندگی جوں کی توں ہی رہی۔ جو رہ گیا وہ بڑھاپا تھا۔ اس نے خواب سمیٹ کر خط دیکھے جو اس نے محاذ پر رہتے ہوئے اپنے خدا کو لکھے، جن میں انہوں نے خدا کو شکایت کی تھی، اے رب جلیل، میرے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر لوگ آج بھی مجھ پر جملے کستے ہیں۔ وہ آنکھوں میں چھپی معصومیت اور غربت کے احساس کو نہیں سمجھ سکتے۔ خطوط میں لکھی شکایتوں کا اب تک ازالہ نہیں ہو سکا ہے۔ ذرا رک کر خاموش لبوں سے پکارا، یا خدا، ذرا میرے خوابوں کو تو ہی سنبھال لے۔ یہ خواب اور خط اپنی گٹھڑی سے نکال کر تجھے دیتا ہوں۔ انہوں نے خوابوں کے ساتھ ان خطوں کو بھی اپنے خدا کے حوالے کیا،
जिनमें मोहब्बतें थीं, प्यार था, बच्चों की मुस्कुराहटें थीं, सावन के भीगे दिन थे, बूंदें थी, बारिशें थी, नामुकम्मल प्यार था, बीते लम्हों के दर्द थे, जुदाई थी, पिछड़ते वक्त के मौसम थे। गठरी में अब बाकी तस्वीरें थीं, जवानी के साए में लिपटे वक्त का मलबा था। उन्होंने वक्त के मलबे को छूकर महसूस किया, सब का सब जरा जरा होकर बिखर गया। गठरी में फैले हुए वक्त के मलबे को देखकर एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर उबल पड़ा। कलेजे में दर्द के कांटे चुभने लगे। उसने ट्रेन की दर्द से बाहर देखा। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। ट्रेन की रफ्तार कम कर दी गई। उन्होंने अपनी जवानी और बीते वक्त के बिखरे मलबे को गठरी से निकालकर आंखों में उमड़े सैलाब की नजर कर दिया। बारिशें रो पड़ी। तूफान चुप सा हो गया। एक जोरदार झटका लगा। एक गरीब सिपाही की बोगी पटरी से उतरकर एक गहरी खाई में जा गिरी। वक्त रुक गया। खाली गठरी में बस एक इंतजार ही था, जो एक कोने से अब भी लटका हुआ है, जिसके साए में बूढ़ी माओ की आंखें हैं। मोहब्बतों की कहानी है, जिसमें बारिशें आज भी रोती हैं और तूफान चुप सा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी कहानियाँ आपके नाम के साथ सरफराज आसमान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर चलाई जाएं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। ये जो कहानी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, इसको सिंधी जबान से उर्दू तर्जुमा किया गया है, जिसको सिंध के एक बहुत अच्छे कहानीकार आसिफ जमाली ने लिखा है। कहानी का उन्वान है मूर्ति। पुराने शाही बाजार के एक कोने में एक दुकान थी। अब तो पूरे बाजार की तरह वो दुकान भी तकरीबन खत्म हो चुकी है, मगर वो दुकान और उस दुकान का मालिक अब भी हर एक को अच्छी तरह याद होगा। अगर वक्त की तेज उड़ती धूल ने उसकी याद से किसी के जहन को गर्द आलूद कर दिया हो, तो आज मेरे साथ चलकर अपने हाल और मुस्तकबिल से निकलकर जहन पर आए माजी की गर्द को झाड़े और अपनी याददाश्त की सही करे। मगर जो उदासी और एहसासाती अजियत से घबराता हो, वो जहमत ना करे। हाँ, आप अपने जहन पर जोर डालकर याद करें अपने शहर के शाही बाजार के कोने वाली दुकान, जहाँ पर नीलामी कोट, मरे हुए अंग्रेजों की पैंट शर्ट्स, जिसके एक एक्सपायर फैशन से जाहिर होता था कि ये यूरोप से 30 साल पहले की बरामद करदा थी। बेकार फटे पुराने लॉन्ग बूट, जिनकी हालत जार से पता लगता था कि जरूर इन बूटों ने खारदार पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों की सख्तियां झेली होंगी, या ये कि शायद जंग अजीम में मरे हुए फौजियों के हों। इसके अलावा बच्चों के टूटे फूटे खिलौने, जिनमें से कोई भी खिलौना सही सालिम बच्चों के खेलने के लिए नहीं बचा था। किसी गुड़िया की टांग निकली हुई थी तो किसी गुड़िया का बाजू निकला हुआ था। जहाज बगैर परों के और बंदूकें बगैर नालियों की थीं, जबकि टूटे फूटे बैट, दीमक लगी हाकियां दुकान के इर्द गिर्द बिखरी पड़ी थीं। एक पुराने तर्ज की ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी, जिसका शीशा टूट चुका था। उस पर एक कैप पड़ा था, जिसमें नन्ही मुन्नी मासूम चिड़ियों ने घोंसला बना दिया था। दीवार से लगा एक गिटार भी था, जो चूहों की रिहाइश गाह बन चुका था। हाँ, इस दुकान में हर चीज बेतरतीबी से इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इन बेमकसद बेतरतीब चीजों के अलावा एक ऐसी चीज भी थी जो दुकान का हुस्न और दुकानदार की जिंदगी की कुल सरमाया थी। वो एक हसीन नाजनीन दोशीजा की शाहकार मूर्ति थी, जिसको देखने के बाद शायर हजरात को वो अल्फाज नहीं मिल पाते थे जिससे उस खूबसूरत मूर्ति की तारीफ की जा सके। बस मुंह खोले, अपनी बत्ती से बाहर निकाले, हक्का बक्का देखते रह जाते थे, और आम इंसान देखते ही शायराना कैफियत का शिकार होकर किसी शेर से अपनी अकीदत का इजहार करने लगते थे। ऐसे अकीदत मंदाना शेर इनके मन में खंबे की तरह झट उगाता
کیا حسن تھا، کیا نزاکت تھی۔ دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں بھی چمک پیدا ہو گئی۔ اس مورتی کے حسن کو دیکھتے ہی ہر آنے جانے والا شخص اس مورتی کو دیکھتا رہ جاتا تھا، کافی دیر تک بے حس و حرکت۔ تب ایسا محسوس ہوتا جیسے ان پر کسی سامری نے منتر پڑھ کر پتھر بنا دیا ہو۔ پھر اس دکان کا مالک ہی انہیں یہ کہہ کر جادو کے اثر سے نکال کر شرمندہ کر دیتا کہ مسلسل میری بیوی کو دیکھے جا رہے ہو، اپنی کو لے کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں۔ اس جملے پر کچھ سرپھرے لوگ تو لڑ پڑتے تھے، البتہ کچھ لوگ اپنی غلطی کو محسوس کر کے چلے جاتے تھے اور پھر کتنے عرصے تک بھول کر بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ ہاں، البتہ دوبارہ سہبارہ اور بار بار اس مورتی کو دیکھنے کی آرزو ضرور ہوتی۔ اس کو اس مورتی سے بے پناہ محبت تھی، سارا دن اس کی صفائی ستھرائی میں لگا رہتا تھا۔ صبح کو ایک کپڑے پہناتا تو شام کو دوسرے کپڑے پہناتا تھا، جبکہ خود اپنی صفائی اور اپنے کپڑوں کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا۔ کپڑے بھی مہینے میں ایک بار بدلتا تھا۔ میری یادداشت کے مطابق دکان کی صفائی بھی کبھی نہیں کی، جبکہ اس کی رہائش گاہ، سونا، کھانا پینا اسی دکان پر ہی ہوتا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں شہر میں بہتی ایک نہر میں نہایا کرتا تھا، وہیں پر اپنی حاجت روائی بھی کرتا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں وہ شہر کی مساجد کے پیش اماموں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کے چائے پانی کا لالچ دے کر اپنا یہ کام نکال لیا کرتا تھا، کیونکہ مساجد کے غسل خانوں اور بیت الخلاء کی چابیاں اکثر پیش امام کے پاس ہی ہوا کرتی تھیں، مگر پھر گرمیاں آتے ہی وہ ان سے لا تعلق ہو جایا کرتا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کون تھا، اس کے کوئی رشتہ دار بھی تھے یا نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس یہ معلوم تھا کہ پاکستان بنتے ہی اس نے یہ دکان کھولی تھی۔ وہ مورتی بھی ابتدا سے اس کے ساتھ تھی۔ آخر یہ مورتی کس کی تھی، کس نے بنائی تھی، خیالی تھی یا ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی کا کوئی وجود بھی تھا؟ بہرحال سنگ تراش نے اپنے کمال فن و ہنر کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہر ایک اس مورتی کے راز کو جاننے کا خواہش مند تھا۔ مساجد کے پیش اماموں نے، جن سے وہ سردیوں میں خاصی علیق سلیق رکھا کرتا تھا، کئی بار اس سے اپنے اور مورتی کے بارے میں پوچھا، مگر وہ انہیں یہ کہہ کر بات گول مول کر دیتا تھا کہ میرے خیال میں قبروں کو کھودنے سے گلی سڑی ہڈیاں ہی ملتی ہیں۔ ان گلی سڑی ہڈیوں سے کسی کا کیا مطلب، ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس مورتی میں اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، جیسے کسی جن کی کسی پرندے میں سانسیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس مورتی کی وجہ سے اس کی زندگی کا سفر رواں تھا۔ اس کی دوستی بھی اس سے تھی، اپنے دکھ سکھ اور تکالیف وہ اس سے ہی بیان کرتا تھا، جبکہ اس کے پاس بہت سے لوگ ہزاروں باتیں لے کر آتے تھے، مورتی کو خریدنے کے لیے ہزاروں کی بولیاں دیتے تھے۔ وہ جب ایسی باتیں سنتا تھا تو اس کو غصہ آ جاتا تھا اور اس کو بددعائیں، گالیاں اور لعنتیں دے کر کہتا، کیا آپ اپنی بیوی کو فروخت کریں گے؟ اور خریدار ایسی باتیں سن کر خاموشی سے اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر کے چلے جاتے۔ اس کی اس عجیب طبیعت اور سوالات کے چبھنے والے جوابات دینے کی وجہ سے ہر شخص اس کو پاگل سمجھنے لگا تھا۔ اس نے جس کو گالیوں لعنتوں سے نوازا تھا اور جو بھی اس کی زہریلی باتوں کا ڈسا ہوا تھا، وہ پیٹ پیچھے اس کے خلاف محاذ کھڑا کرنے لگے۔ ایک رات اچانک چیخیں سنائی دیں۔ لوگ بندوقیں اور ڈنڈے اٹھا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ چیخیں اس کی دکان ہی سے آ رہی تھیں۔ آنن فانن دکان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ اس سے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے چیخ چیخ کر کہا، کوئی ظالم میری بیوی کو بھگا کر لے گیا ہے، میری زندگی اجاڑ گیا ہے، ظلم ہو گیا، اندھیر ہو گئی، اس کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ کچھ لوگ اس کی بات سنی انسنی کر کے چلے گئے اور کچھ لوگوں کو افسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ مورتی پورے بازار کا حسن تھی اور اس شہر کی پہچان بھی۔ کہاں کہاں سے لوگ اس مورتی کو دیکھنے آتے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، کسی بات پر بھی مان نہیں رہا تھا۔ بالآخر اس کو یہ دلاسا دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی گئی کہ صبح کو اس چوری کی FIR کٹوا دی جائے گی اور پھر
थोड़ी देर बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को चले गए, मगर वो मुसलसल रो रहा था। अब मैं कैसे जीऊंगा? जब सुबह हुई तो लोगों ने उसको उस दुकान में मरा हुआ पाया। शहर में एक अजीब सन्नाटा सा छा गया। हर दर्दमंद दिल रखने वालों की आंखों में आंसू थे और बेमौसम बरसात हो रही थी। कई बातें गश्त करने लगीं। किसी ने कहा इसने खुदकुशी की है, किसी ने कहा इसकी तबई मौत हुई है, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसको कत्ल किया गया है। ऐसी ही अच्छी और इस्लाही कहानियों के लिए YouTube चैनल सरफराज आसमान को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को फॉलो कर दें ताकि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे एहसास के साथ जुड़ सकें। मुस्लिम अंसारी की लिखी हुई एक कहानी आपकी खिदमत में पेश है, जिसका उन्वान है गांव से शहर देखने आई लड़की। मुझे याद पड़ता है अपने एक और सफर से, जब मैं मशरकी पाकिस्तान के किसी गांव से शहर के घर लौटा। कमरे के दरवाजे पे लगा ताला जंग पकड़ चुका था। उन्हीं दिनों जब मैं मौजूद नहीं था, मोहल्लेदार मेरी गैर मौजूदगी में मेरे नाम आए तमाम खतूत बगैर खोले दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया करते थे। चिरचिराती आवाज के साथ जब दरवाजा अंदर की जानिब खुला तो फर्श पे बेतहाशा फैले खतूत के मजमे ने मुझे मायूस कर दिया। रंग बिरंगे लिफाफों में लिपटे खतूत जिन पे किसी भेजने वाले के घर का पता दर्ज नहीं था। इन्हीं महीनों हुई बारिशों ने जहां दीवारों पे सीलन छोड़ी, वहीं फर्श पे नमी बसेरा कर गई। कुछ खतूत फर्श की तह से चिपक चुके थे। मेरा सफरी बैग जिसमें सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं भरा होता, मैंने उसे लकड़ी की कुर्सी के नीचे धंसा दिया। साल हर साल बीत चुके हैं, मुझे कोई खत नहीं लिखता, और फिर एक साथ इतने ज्यादा खतूत ने मेरी सांसें बोझल कर दी। किसी गुज़िश्ता बरस की बात है। मुझे मिले तमाम खतूत मैं रात गए बावजूद बिजली होने के लालटेन या मोमबत्तियों की रोशनी में सिगरेट पीते हुए पढ़ा करता था। खैर, ये गए दिनों की बात है। शाम ढलने से पहले पहले दोस्तों का एक जम्मे गफीर मेरी हालिया सफरी रुदात सुनने बैठक में जमा था। उनकी सारी बातों और सवालों से कहीं ज्यादा वजन इस शेल्फ का महसूस हुआ जिस पर मैंने वो खतूत इकट्ठे कर रखे थे। रात के साए वजूद पकड़ने लगे। रफ्ता रफ्ता सारे दोस्त यके बाद दीगरे उठे और जाने लगे। चंद एक बचे खुचे दोस्तों ने सहन में रखे हुक्के में चिलम भर दिया। अमूमन हम चिलम नहीं पीते, बेशतर दोस्त सिगरेट पीते हैं, मगर उस रोज कमरे में हुक्के की गड़गड़ाहट भाने लगी। रात का पहला पहर बीता तो कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। एक डर जो मुझे खतूत खोलने से रोक रहा था, और फिर किसी तकनीकी खराबी की तरह वो खतूत खुद ब खुद मेरे सामने खुल गए। किसी अजनबिया के खतूत जो गांव से शहर देखने आई थी। एक लड़की जिसने मेरे नाम बिला वजह इतने खत लिख छोड़े। मैं मुतमईन हो गया और फिर उन्हें तरतीब से पढ़ने लगा। वो खत किसी ऐसी लड़की के थे जो किसी महीने की पहली तारीख को पैदा हुई। उसकी उम्र 30 साल से कुछ नीचे थी, मगर उसकी बातें किसी कमसिन लड़की जैसी थी। मैंने खतूत डाक टिकट्स की तरतीब और तारीख के मुताबिक खोलने शुरू किए। पहले पहल के खतूत बचकानी बातों से भरे हुए थे। वो लड़की कभी अपने कपड़ों के रंग का तस्करा करती, कभी बालों, कभी आँखों और कभी रंग बिरंगी बातें लिखती। उसका लिखा 7वां खत कदरे संजीदा और बेजायका था। उसे पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एकदम जवानी को पहुँच गई है। उसने बताया वो फ्रॉक पहनना छोड़ चुकी है। अब गांव में चूल्हे के लिए लकड़ियां लाने वो नहीं निकलती, ना ही मेहमानों के सामने खाना परोसती है। ऊंची आवाज से ना तो बात करती है, ना ही कहकहा लगाती है। उसने अपने तमाम तर खिलौने अपनी अम्मी के जहेज में मिले पेटी में रख दिए हैं। उसका 7वां खत पढ़कर ऐसा लगा जैसे कमरे में अंधेरा ज्यादा हो गया है। कोई गैर मानूस डर कमरे में छुपकर दाखिल हो रहा है। फिर उसके बाद के तमाम तर खतूत ऐसे थे जैसे डॉक्टरों की लिखी रिपोर्ट हो। फकत जरूरी बातें वो बताती। मौसम गदला और बारिश मकरूह दर्जे तक गीली है। उसके सामने लोग बातें नहीं करते हैं। गांव की औरतें उसके पास बैठकर एक दूसरे से आंखों आंखों में बातें करती हैं। उसकी माँ उसके लिए पैसे और छोटी बड़ी चीजें जोड़ने लग गई है। उसने बताया मुझे खौफ खा रहा है। इस 11वें खत में उसने पहली बार सवाल किया कि मुझे बताओ वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मुझे अफसोस होने लगा कि काश मैं सफर पे ना होता तो उसे जवाब दे पाता। उसने 12वें खत में लिखा कि उसका बाप उसकी माँ के जेवरात पॉलिश के लिए शहर के जरगर के पास ले गए हैं। माँ अब गांव की औरतों के घर और गांव की औरतें हमारे घर रस्मी तौर से ज्यादा आने जाने लगी हैं। 13वें खत में उसने बताया उसका भाई शहर से ज्यादा रकम भेजने लग गया है।
उस दिन वो खत में बड़े भाई की बातें लेकर बैठ गई। उसने बताया वो सालों पहले शहर चला गया था, अब तो उसकी दाढ़ी भी उग गई होगी। फिर एकदम खत पढ़ते हुए मुझे लगा वो अफसरदा हो गई है। उसने किसी तरह के जले लहजे में लिखा था कि अब्बा जान कहते हैं बड़े शहर गांव के बच्चे खा जाते हैं, वो वापस क्यों नहीं आता है। फिर 14वें खत में फकत सवालात थे। बाबा की बात का मतलब क्या है, शहर कैसे होते हैं। सुना है शहर में गैस जैसी कोई चीज होती है जिसमें पाथियां, गोबर की रोटी नहीं डालनी पड़ती और आग जल जाती है। बताओ क्या उस पे रोटी गोल बनती है। क्या शहर में सचमुच लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते। तुम्हारा शहर कैसा है, शहर में सैलाब आते हैं, हमारे यहाँ सारे खेत बह जाते हैं। अच्छा क्या शहर में खेत होते हैं, और जाने क्या क्या अजीब तरह के सवालात जिनके किसी किस्म के सर पैर न थे। ऐसे सवालात कौन करता है भला, कौन सी लड़की है जो इतनी अनजानी है। आखिर ये किस जानिब का गांव है, क्या वो सचमुच 30 साल की है। और फिर उसने 20वां खत लिखा। उसका वो खत आज भी ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर नहीं लिखा, उससे गलती से लिखा गया। उसने साफ लिखा वो शादी नहीं करना चाहती, उसे मर्दों से डर लगता है, वो औरतों को मारते हैं। गांव में तो आए रोज कोई ना कोई किस्सा गर्दिश करता रहता है। जिरगा मर्दों का है, मर्दों के हक में फैसले होते हैं। जिरगे और पंचायत में सिर्फ मर्द ही क्यों होते हैं। मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, उल्टा औरतें मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही हैं। उसने मदद मांगी थी, वो चाहती थी किसी तरह मैं उसके गांव आऊं और उसे यहाँ से ले जाऊं, मगर उसने कोई पता नहीं लिखा था। मेरा दिल लम्हा भर को रुक गया। मैंने खत बंद किया और कमरे में टहलने लगा। अजीब वसवसे, रोशनदान, खिड़की, दरवाजे और जाने कहां कहां से कूदकर मेरे साथ कमरे में टहलने लगे। कौन है वो लड़की, उसे मेरा एड्रेस किसने दिया। मैं किसी गांव में नहीं ठहरा, इतने दिन तो कभी नहीं कि कोई मुझसे ताल्लुक बना बैठता। मैं तो शक्लन भी हसीन नहीं और ना ही मेरा रंग गोरा है। और वो लड़की मुझे खत कहाँ से अरसाल करती है। क्या वो किसी डाकिये की बेटी है। शायद उसके घर के पास ही पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होगा, मगर उसे मेरा पता किसने दिया। क्या ये कोई मजाक है। मेरे दोस्तों में से तो कोई ऐसा घटिया मजाक नहीं कर सकता। क्या वो सचमुच है, मगर वो कौन है। मैंने एक के बाद दीगरे उसके बकाया खतूत मानो एक ही सांस में पढ़ डाले। मुझे मालूम हुआ उसने शादी से पहले आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो शहर देखना चाहती है। उसका बूढ़ा बाप उसे शहर घुमाने लाया था। वो मेरे ही शहर आई थी। उसने बुलंद इमारतों का लिखा, हुजूम और गाड़ियों के शोर का लिखा, अच्छे खानों, महंगे बाजारों का लिखा। जिन जगहों का उसने नाम लिखा वो सब जगह मेरे शहर की हैं। मेरा सर चकरा कर रह गया। क्या वो सचमुच शहर आई थी। क्या देखना चाहती थी वो शहर में, और मेरा ही शहर क्यों। और जब मैंने उसका आखिरी खत पढ़ा मुझे लगा किसी ने पूरा कमरा मेरे सर पर दे मारा है। उसे बहुत अजीब और गरीब लहजे में लिखा, भाई मेरी शादी हो गई है, तुम शादी में नहीं आए। अब्बा जान मेरी शादी पे खुश थे, वहीं वो बेहद उदास भी थे। मेरे भाई, मैं तुम्हारे शहर आई थी। शहर घूमना महज एक बहाना था। मैं और बाबा तुम्हें ढूंढने आए थे। शहर बहुत अजीब है, यहाँ बहुत भीड़ है, तुम हमें कहीं नहीं दिखे, हम तुम्हें नहीं ढूंढ सके। जिस एड्रेस पे मैं खत भेजती रही वहाँ ताला लगा था। शायद अब तुम वहाँ नहीं रहते। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैंने तुम्हें बहुत खत लिखे थे। मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ जिसे तुमने फकत 10 साल की उम्र में ऐसे ही छोड़ दिया था और गांव से चले गए। आखिर तुम गांव से क्यों चले गए थे और मुझे क्यों साथ नहीं लेकर गए। तुम तो मुझे कांधों पे बिठा के खेतों में चक्कर लगाया करते थे, गाँव के मेले दिखाते थे। माँ भी बहुत रोई, उसकी आंखों में मोतिया उतर आया है। मेरे भाई, आखिर तुम कहाँ हो। क्या तुम्हें मेरा कोई खत नहीं मिला। क्या तुम्हें मेरा ये खत भी नहीं मिलेगा। क्या जब से तुम हमें छोड़कर गए हो हमारी याद ने तुम्हें नहीं रुलाया। मैं उससे आगे नहीं पढ़ सका, मुझे पता है इससे आगे आप भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। मैंने खत बंद कर दिया, मुट्ठी में भेज लिया। आखिर वो लड़की, यानी वो मेरी बहन, अच्छा मुझसे और नहीं लिखा जा रहा। ऐसी ही अच्छी और इस्लाही कहानियों के लिए यूट्यूब चैनल सरफराज आसमान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें ताकि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे एहसास के साथ जुड़ सकें।